नमस्कार। मैं अनिल कुमार आज आपके समक्ष लेकर आया हूँ एक और फिजिक्स का टॉपिक जिसका नाम है पोटेंशियल एनर्जी। तो आज हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी की, दोनों ही भाषाओं में बात करेंगे। पहले हम इसको इंग्लिश में समझेंगे, देन उसके बाद हम इसको हिंदी में समझेंगे। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। The energy possessed by their position is called potential energy. It is the stored energy that has the potential to do work when the position of the object changes. Potential energy defined as the energy due to their position. Now, second term, we will derive their formula. We all know that the work done is equal to the force into displacement. Now we derive this formula. So first of all we want to get the value of force. Force is equal to the mass into acceleration due to gravity, equal to m into small g, and work done equal to force into displacement. Here the displacement is count as in term of height. So we both value put it in this formula. Work equal to force into displacement. In place of force we put up m into g, and in place of displacement we put h. The formula becomes m into g into h. The potential energy equal to the m into g into h. Unit of potential energy. SI unit of potential energy is the joule. 1 joule is equal to 1 Newton into 1 meter, or in MK system 1 kilogram meter square per second square. And again we move on. The dimension of the potential energy is equal to the ml2 t minus 2, because the SI unit is 1 kilogram meter square per second square. So dimension के according mass is measure represented by m, distance is represented by l, and time is represented by t. So dimensional formula of potential energy is m l2 t minus 2. Type of potential energy. Now next हमारा content आता है आपके पास type of potential energy. There are several type of potential energies. First of all, most important is the gravitational potential energy. The energy due to the height of an object is called gravitational potential energy. The best example is the water storing on the top of the tower of a building, है ना. And second is elastic potential energy, the energy possessed by the spring or rubber band is the example of elastic potential energy. Next, chemical potential energy, stored in the bond of chemical bonds, chemical compounds, is called chemical potential energy. Next one is electrical potential energy, energy due to position in an electric field. When an object is placed in between the electric field, what a force is applied on it. Due to that force, the object will start to move. And next is nuclear potential energy, stored in the nucleus of an atom. Each and everything in the world is made by the atom. That means nuclear potential energy is in each and every object of the universe. Now next topic is conversion of potential energy. Energy can be converted into kinetic energy. When a ball falls from a height, its potential energy becomes kinetic energy. Conversion of potential energy into electrical energy. In hydroelectric dam, water stored at height. When this water fall from there, they convert into kinetic energy, and further we use that kinetic energy to make electricity. Next,
Potential energy also can be converted into sound energy. Compressed spring releasing energy can produce sound. This is the examples of conversion potential energy into various type of another form of energies. Next, one an important topic which is also want to cover in this section, that is the law of conservation of energy. Energy can neither be created nor destroyed, but only transfer one form to another form. An object fall, its potential energy decreases, but its kinetic energy increases. Keeping the total mechanical energy is the sum of kinetic energy plus potential energy remains constant. Relation between kinetic energy and potential energy, because the fundamental nature of the science is that we can convert kinetic energy into potential energy and vice versa. So at the height of h, an object which mass is m falling freely from the top position, at the top position their kinetic energy is 0 because there is no any motion at that time, and potential energy is maximum because it is placed at the some height. Right, that means total mechanical energy will be mgh at top of a hill or top of a building. But when an object is falling at height h1, so then potential energy will be mgh1 because it is at the height of h1, and kinetic energy will be the total energy minus potential energy at that point, mgh minus mgh1. So there will be three imaginary point at my mind. First, at the top position, the total kinetic energy plus potential energy will be mgh, and at a point h1 height, the kinetic energy is mgh minus mgh1. Mgh is the total kinetic energy, the total energy, and mgh is the potential energy at height h. At bottom, when an object fall from the top of the building or the tower, and when it strikes to the surface of earth, its potential energy becomes 0 and the total kinetic energy becomes mgh. So all according to these 3 points, kinetic energy plus potential energy remains constant. That means in a system where kinetic energy converted into potential energy or vice versa, the total mechanical energy remains constant. This shows that interchangeability of kinetic energy and potential energy during motion remains constant. Kinetic energy can be converted into potential energy can be converted into kinetic energy. This interconversion remains continuous when other factor remains constant. 5 basic example of potential energy when a rock resting on a cliff edge, that is called gravitational potential energy, because if we apply something force on it, it will again start to motion. A stretched bow ready to shoot an arrow, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, यदि हम तीर कमान को लेते हैं, उस पर कमान पे तीर चला के उसे खींच के रखते हैं, तो इस समय इसमें पोटेंशियल एनर्जी है, लेकिन जैसे ही हम बॉ की इस रॉड को छोड़ेंगे, जो एरो है पूरी स्पीड के साथ मोमेंटम आगे मूव ऑन करेगा. ठीक है, दिस इज व्हाट इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का एग्जांपल है. वाटर स्टोर इन अ डैम इज अनदर great example of gravitational potential energy, and a compressed spring is the example of elastic potential energy. Yes, food storing chemical energy that our body can use later. हम इसकी बात बाद में करेंगे, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर भी एनर्जी की ज़रूरत होती है और ये एनर्जी फूड के फॉर्म में हमारे बॉडी में स्टोर होती है. और आप सब जानते हैं वो किस फॉर्म में स्टोर होती है. ग्लूकोज हमारे बॉडी में होता है. ये ग्लूकोज जब हम कुछ नहीं खा रहे हैं तो ग्लाइकोजन की फॉर्म में हमारे बॉडी में होता है. तो आज का जो हमारा टॉपिक था पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड था. तो एनर्जी पॉसेस ड्यू टू द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी. इट्स बेसिक फार्मूला इज mgh. At different level of height, its value will be interchanged from potential to kinetic and kinetic to potential. That means the total mechanical energy remains constant.
The formula mgh, dimension of potential energy is ml2 t minus 2. Now we will again talk about this all things in हिंदी. तो किसी भी वस्तु की वह ऊर्जा जो उसकी स्थिति के कारण होती है उसको हम स्थिति ऊर्जा कहते हैं. ये हर उस वस्तु के अंदर रहती है जिसमें कोई मोशन नहीं हो रही. तो यदि उस पर कोई मोशन नहीं हो रही तो वो रुकी हुई चीज़ है, तो इसलिए स्थिति ऊर्जा है उसके अंदर, जिसको हम कार्य में कन्वर्ट कर सकते हैं. लेकिन कार्य में कन्वर्ट करने के लिए हमको उसकी स्थिति को परिवर्तन में करना पड़ेगा, यानी कि उसकी पोजीशन को बदलना पड़ेगा. तथा इसका फार्मूला क्या है? तो स्थिति ऊर्जा का जो सूत्र है वो है mgh. क्योंकि हमें मालूम है कि ऊर्जा जो है वो कार्य के बराबर होती है. कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन. कोई भी वस्तु जो धरती के ऊपर है उसके ऊपर एक गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, तो वो गुरुत्वाकर्षण बल का फार्मूला होता है m इंटू स्मॉल g. तो हमारे पास भी यहाँ कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन है. बल कितना लग रहा है? जो धरती उसे अपनी तरफ खींच रही है, और वो है m इंटू जी. और ये m इंटू जी जो बल है वो धरती उस ऑब्जेक्ट पे लगा रही है जो समथिंग किसी ऊंचाई पे रखा हुआ है. तो जो दूरी है वो उसकी होगी h. तो इस तरीके से जो कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन है, बल की जगह हम पुट करेंगे m गुणा जी, और उसके विस्थापन की जगह पर हम पुट करेंगे h. तो इन तीनों को क्लब करते हैं तो मेरे पास फार्मूला आ जाता है m गुणा जी गुणा h. ये कार्य का फार्मूला होता है. यदि कोई वस्तु किसी ऊंचाई पर रखी हुई है तो उस पर कितना कार्य होगा? m गुणा जी गुणा h. ठीक है ना. और हमें पता है कार्य ऊर्जा के बराबर होता है, और हम यहाँ पे स्थिति ऊर्जा की बात कर रहे हैं. तो स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला हो गया m गुणा जी गुणा h, यानी कि mgh. इसको आप u से दिखाते हैं. स्थितिज ऊर्जा को हम u से दिखाते हैं, तो u इक्वल टू mgh हमारा ये एक फार्मूला बन जाता है. अब हम बात करते हैं इसकी इकाई की. तो जैसे मैंने आपको बताया था, स्थिति ऊर्जा जो है वो कार्य का ही एक रूप है, क्योंकि जितना हम में एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है, हम उतना ही कार्य कर पाते हैं. तो कार्य की जो इकाई है वो जूल होती है, इसलिए स्थिति ऊर्जा की इकाई भी जूल ही है. इसको यदि मैं एम के सिस्टम के अकॉर्डिंग देखूं तो एक जूल बराबर होता है, हम जिसको बोलते हैं कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन. तो बल का मात्रक जो है वो न्यूटन है, दूरी को आप मीटर्स में रिप्रेजेंट करते हैं. तो एक जूल बराबर आ गया 1 न्यूटन गुणा 1 मीटर. न्यूटन को आप किलोग्राम मीटर पर सेकंड में भी कन्वर्ट करते हैं. तो यहाँ पर मेरे फार्मूला जो बन जाएगा 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर. ये इसकी क्या बन गया? ये इसकी इकाई बन गई. इसी इकाई से मैं इसकी वीमा भी बता सकता हूँ. तो वीमे सूत्र के हिसाब से यदि मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे कि 1 जूल बराबर होता है 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर. तो क्योंकि मैं यदि वीमा की बात करूँ तो किलोग्राम को हम m से दिखाते हैं, दूरी को जो है l से दिखाते हैं, और समय को t से रिप्रेजेंट करते हैं. तो इसका मतलब जो इसका वीमे सूत्र बन गया वो बन गया ml2 t माइनस 2. जी हाँ, ml2 t माइनस 2. यही विमेय सूत्र मेरे पास काइनेटिक ऊर्जा का भी है, यही विमेय सूत्र मेरे कार्य का भी होता है, या किसी भी ऊर्जा का जो होगा वो ml2 t माइनस 2 ही होगा. तो ऐसा ही सिस्टम के कोड, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे वो स्थिति ऊर्जा हो, या भी कोई भी काया गया कार्य हो, उन सबका विमेय सूत्र ml2 t माइनस 2 होता है. स्थिति ऊर्जा के कितने प्रकार होते हैं? तो जैसे कि हमने माना तो भारत नहीं, पूरे ब्रह्मांड के अंदर जो पूरे हम धरती की बात करते हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही हम धरती के ऊपर स्थित हैं. ठीक है ना. तो हमारी स्थिति गुरुत्वाकर्षण बल की कह रहे हैं, तो इसलिए गुरुत्वाकर्षण स्थिति ऊर्जा होती है. धरती पर जितनी भी चीज़ें हैं उन सबको किसकी वजह से है? गुरुत्वाकर्षण स्थिति ऊर्जा के कारण है. लोचशील स्थिति ऊर्जा अर्थात इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, जो कि आप किसी स्प्रिंग में देखते हैं कि कोई स्प्रिंग जो कंप्रेस्ड है या एक्सपेंडेड है, उसके अंदर आपके पास लोचशील, लोच मतलब कि जिसमें आप उसको खिंचाव कर सकते हैं. ऐसे ही अगला आता है रासायनिक स्थिति ऊर्जा. तो जो जितने भी हमारे पास कंपाउंड हैं
यौगिक हैं उन सब में, उन रसायनों में रासायनिक स्थितिज ऊर्जा होती है, जिसके द्वारा हम विद्युत ऊर्जा डालें यदि पैदा, या हम विद्युत ऊर्जा पैदा भी कर सकते हैं, या विद्युत ऊर्जा से उसकी जो रासायनिक ऊर्जा है उसमें परिवर्तन ला सकते हैं। ऐसे ही वैद्युत क्षेत्र में स्थिति के कारण कोई विद्युतीय क्षेत्र के अंदर यदि कोई मैं विद्युतीय आवेश रखता हूँ तो उसमें क्या हो जाता है, उसमें गति आ जाती है। तो ये वैद्युतीय स्थिति ऊर्जा के कारण ही उत्पन्न होती है। दुनिया की हर वस्तु, चाहे वो छोटी से छोटी हो या बड़ी से बड़ी हो, नाभिक से मिलकर बनती है। परमाणु के अंदर नाभिक होते हैं, तो परमाणु के नाभिक में संग्रहित ऊर्जा को नाभिकीय स्थिति ऊर्जा कहते हैं। हमें पता है कोई भी परमाणु का जो केंद्र होता है, नाभिक जो होता है, उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को आपस में बांधने के लिए, बाउंडिंग के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है, उसको ही नाभिकीय स्थिति ऊर्जा कहा जाता है। स्थिति ऊर्जा का रूपांतरण, आप इसके रूप को कैसे बदल सकते हैं? तो ये एक सर्व सत्यापित घटना है कि ऊर्जा का रूपांतरण हो सकता है, उसकी वैल्यू को आप कम या ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, है ना। तो ऊर्जा का संरक्षण का एक नियम है। उस ऊर्जा संरक्षण के नियम से ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल उसके रूप में परिवर्तन कर सकते हैं। उदाहरण लेके, तो जब कोई वस्तु गिरती है तो सबसे पहले टॉप पे, जैसे मैंने बताया, उसमें स्थिति ऊर्जा होती है, लेकिन जब वो उससे नीचे गिर रही होती है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल उस पर ज़्यादा लग रहा होता है, तो जैसे जैसे वो नीचे आती है उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ती जाती है और स्थिति ऊर्जा कम होती जाती है, और ज़मीन पे आने पर टोटल गतिज ऊर्जा हो जाती है और स्थिति ऊर्जा शून्य हो जाती है। यानी कि किसी भी अवस्था में, चाहे वो आरंभिक अवस्था हो, मध्य अवस्था हो या अंतिम अवस्था हो, वस्तु की यांत्रिक ऊर्जा जो है वो नियत रहती है, यानी उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ जबकि हम लगातार देख रहे हैं कि तीनों अवस्थाओं में क्या हो रहा था, पोटेंशियल एनर्जी गतिज ऊर्जा में बदल रही थी, गतिज ऊर्जा बढ़ती जा रही थी और स्थिति ऊर्जा कम होती जा रही थी, यानी समय के साथ साथ ऊर्जा में लगातार परिवर्तन हो रहा है। लेकिन इस जो सिस्टम है, निकाय की कुल जो यांत्रिक ऊर्जा है वो सदैव स्थित रहेगी। हमें इसी को कहते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम। स्थिति ऊर्जा को आप कितनी ऊर्जाओं में बदल सकते हैं? तो मैं कहने जैसे बता दूं कि यदि मैं कोई वस्तु रुकी है तो उसको गति में ला सकता हूं, तो यानी स्थिति ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदला जा सकता है ना। स्थिति ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। यदि मैंने कोई बांध बना के पानी रोक रखा है, यदि मैं उस वहाँ से पानी को नीचे छोड़ता हूँ, यानी उसमें गतिज ऊर्जा आ जाती है। उस गतिज ऊर्जा से मैं टरबाइन घुमा सकता हूँ, यानी कि कुछ यंत्र को उपयोग में ला सकता हूँ, जिसकी वजह से फिर जो उसके आगे मेरे पास मैकेनिज्म लगा है जिसको जनरेटर कहते हैं, उससे हम विद्युत को उत्पन्न कर सकते हैं। ऐसे ही स्थिर ऊर्जा को ध्वनीय या ऊष्मा में भी बदल सकता हूँ मैं। तो ऊर्जा का रूपांतरण किया जा सकता है, रूप बदला जा सकता है, लेकिन ऊर्जा का मात्रा को मैं कम या ज़्यादा नहीं कर सकता हूँ। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम हमें यही बताता है। इसके अलावा जैसे जैसे हमने बताया कि आपको स्थिति ऊर्जा जैसे जैसे कम होती है, गतिज ऊर्जा बढ़ती है, या गतिज ऊर्जा जैसे जैसे कम होती है, स्थिति ऊर्जा बढ़ती रहती है। तो इसी को हम स्थिति ऊर्जा गतिज ऊर्जा के संबंध को समझने के लिए हम कुल कहते हैं कि कुल यांत्रिक ऊर्जा स्थिर रहती है। इस बात को भी सत्यापित कर सकते हैं, क्योंकि मैंने माना जैसे मैं टॉप पे खड़ा हूँ तो टॉप पे मेरे पास जो काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, क्योंकि मैं वहाँ पे मेरी एक स्थिति बनी हुई है। तो इस केस में मेरी वहाँ पे जो स्थिति ऊर्जा होगी वो सबसे ज़्यादा होगी, अधिकतम होगी, mgh होगी, और गतिज ऊर्जा मेरी 0 होगी। लेकिन यदि मैं वहाँ से नीचे गिरना शुरू होता हूँ फ्रीली फॉलिंग बॉडी के अकॉर्डिंग, और बीच में मेरी जो अवस्था होगी वहाँ पे मेरी पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh1, यानी ज़मीन से मैं कितनी ऊंचाई पर हूँ। पहले मेरी टोटल ऊंचाई h थी, अब मान लीजिए मैं ज़मीन से h1 ऊंचाई पर हूँ, तो मेरी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो होगी mgh1। तो काइनेटिक एनर्जी मेरी कितनी हुई? तो जो कुल ऊर्जा थी मेरी, वो काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए मेरी कुल ऊर्जा में से जो मेरी अभी स्थिति की ऊर्जा आई है उसको मैं माइनस करूँगा, है ना। तो mgh
जो सोर्स पे मेरे पास सबसे ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी थी और बीच में आने पर मेरी पोटेंशियल mgh1 हो गई, तो यानी कि काइनेटिक एनर्जी मेरी कितनी हुई, टोटल पोटेंशियल एनर्जी में से जो मेरी खर्च हो गई है, ठीक है ना, वही बची है मेरे पास, राइट। तो mgh में से मैं माइनस कर दूंगा mgh1 को, तो दोनों में कॉमन है mg, तो यानी कि काइनेटिक एनर्जी बीच कितनी बनेगी, mg ब्रैकेट में h माइनस h1। h क्या है, टोटल हाइट, जहाँ पे मेरी, जहाँ से मैंने शुरू करा था, h1 क्या है, वो हाइट जहाँ पर मैं पहुँचा हूँ। तो इसका मतलब मेरे पास अभी भी यांत्रिक ऊर्जा जो मेरी है, इन दोनों का जोड़ होती है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो मेरे को बीच में पोटेंशियल एनर्जी mgh1 है, काइनेटिक एनर्जी mgh माइनस mgh1 है, इन दोनों को यदि ऐड करूंगा तो mgh1 प्लस माइनस वाली वैल्यू मेरी कैंसिल हो जाएगी और मेरे पास कुल रिजल्ट आ जाएगा mgh। तो इससे मेरे को पता लगा कि शीर्ष पे भी मेरी जो कुल यांत्रिक ऊर्जा थी mgh थी, बीच में आने पर भी मेरी जो यांत्रिक ऊर्जा है यानी कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी वो mgh ही है। ऐसे ही मैं ज़मीन पर जब आऊँगा तो मेरी पोटेंशियल एनर्जी टोटल जीरो हो चुकी होगी और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, वो हो जाएगी mgh। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि मैं तीनों ही अवस्थाओं में जो यांत्रिक ऊर्जा थी वो उतनी की उतनी है, लेकिन क्या हो रहा है, ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा काइनेटिक में बदल रही है, लगातार बदलती जा रही है और एक समय ऐसा आया जब वो जीरो हो गई और काइनेटिक एनर्जी अधिकतम हो गई। यानी कि ऊर्जा का रूप तो बदल रहा है लेकिन ऊर्जा की कुल मात्रा पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। यही ऊर्जा संरक्षण के नियम को दर्शाता है। स्थिति ऊर्जा के कोई 5 उदाहरण दीजिए। यदि आपसे कोई पूछे तो आप बोलेंगे चट्टान जो कि किनारे पर खड़ी है ना, उस पर यदि मैं कुछ बल लगाऊंगा तो वहाँ से वो गति की अवस्था में आ जाएगी। खींचा हुआ धनुष जिसके अंदर स्थिति ऊर्जा है, क्यों, जैसे ही मैं इस तीर को छोड़ूंगा इसमें काइनेटिक यानी गतिज ऊर्जा आ जाएगी। ऐसे ही बांध में संचित जल, जैसे बड़े बड़े डैम होते हैं उनमें हम पानी इसलिए स्टोर करते हैं क्योंकि उससे हमें उस पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करना है जिससे विद्युत ऊर्जा पैदा की जा सके। संकुचित ऊर्जा यानी कि इलास्टिसिटी एनर्जी, जो भी कोई स्प्रिंग होती है उसके अंदर इलास्टिक एनर्जी यानी कि संकुचित ऊर्जा होती है। ऐसे ही मैं बात करता हूँ आपसे भोजन या ईंधन के रूप में। तो हमें पता है कि ईंधन के रूप में एनर्जी हमारे पास होती है, कोई भी लकड़ी है उसे जलाइए उसमें ऊष्मा पैदा हो जाएगी, या तो उससे पहले क्या थी वो एनर्जी, उसमें स्थिति ऊर्जा की फॉर्म में संचित थी। तो इसलिए इस प्रकार से हमारा आज का जो विषय था वो था पोटेंशियल एनर्जी। तो उसके कुछ मुख्य हमें बातें समझ में आई। सबसे पहले उसकी परिभाषा, तो किसी भी स्थिति की वस्तु की स्थिति के कारण उसमें जो ऊर्जा होती है उसको हम स्थिति ऊर्जा कहते हैं। उसके बाद उसका फार्मूला, क्योंकि ये किसी भी ऊंचाई पर निर्भर होती है वस्तु की, तो इसलिए इसका जो फार्मूला वो होता है m/g/h। इसके बाद इसकी वीमा यानी डायमेंशन, वीमा जो होती है वो उसके फार्मूले के हिसाब से आते हैं। तो SI सिस्टम के अंदर इसका फार्मूला होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो उसी के अकॉर्डिंग को बेस बनाया जाए तो मेरे पास इसकी डायमेंशन बन जाएगी ml/t-2। ठीक है। इसके बाद हमने बात किया था कि मैकेनिकल एनर्जी कितनी होती है। तो मैकेनिकल एनर्जी जो होती है वो रिमेन्स कांस्टेंट होती है, यानी कि वो नियत रहती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, चाहे वस्तु रुकी हुई हो चाहे वस्तु गतिमान हो, एनर्जी का रूप बदलता रहता है लगातार। इसके कुछ उदाहरण भी आपको समझाए मैंने, जैसे कि तीर का मान समझ लीजिए आप, जैसे कि कोई पत्थर चट्टान से ऊपर से नीचे फेंक रहे हैं या किसी बांध में संचित जल है, ये सब इसके बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं। तो आज का जो विषय था वो हमारा किसके ऊपर था, वो हमारा था पोटेंशियल एनर्जी पर, यानी कि स्थितिज ऊर्जा पे। आशा करता हूँ आपको ये सब समझ में आया होगा। हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, हमारे साथ जुड़े रहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।